Good morning, dear students. So, today we are going to do a new poem entitled with A Legend of the Northland. So, let's see what is this poem all about. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. अब ये जो कहानी है एक्चुअल में एक लेजेंड के ऊपर है, एक कह सकते हैं घटना के ऊपर है जो कि एक औरत से रिलेटेड है। कैसी औरत? जो कि ग्रीडी थी, लालची थी। और एक बार जब सेंट पीटर उसके पास जाते हैं तो उन्होंने उनको जब चीज़ें नहीं दी तो उनके साथ क्या किया जाता है, ये कहानी उसी के बारे में है, ये पोएम उसी के बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the good Saint Peter lived in the world below, and walked about it preaching just as he did, you know. He came to the door of a cottage in travelling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another, and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough, and rolled it flat, and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. For she said, my cakes that seem too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food, by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. So let's see the first stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. काफ़ी दूर के देश के बारे में बताया जा रहा है। कहाँ की? नॉर्थलैंड के बारे में, जहाँ पे जो घंटे होते थे दिन के काफ़ी कम होते थे और रात कैसी दिखाई गई है? काफ़ी लंबी, क्योंकि विंटर रहा करता था और वो सारा टाइम उसको क्या करते थे? सो करके बिता नहीं पाते थे। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cub in their furry, funny clothes. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बच्चों को किसके साथ कंपेयर किया गया है? बेयर कब्स के साथ, यानी भालू के बच्चों के साथ। बच्चों ने जो कपड़े पहने, एक तो वो फ़नी लग रहे हैं। फ़नी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जब आप बहुत सारे बालों वाले, यानी आपने देखा होगा विंटर क्लोथ्स कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुआंटियाँ होती हैं उसमें, तो जब ऐसे कपड़े बच्चे पहनेंगे तो देखने में फ़नी लगेंगे ही। उन्होंने खुद को किसके साथ हार्नेस करके रखा है? तो यहाँ पे रेनडियर के बारे में बताया जा रहा है। आपने देखा होगा काइंड ऑफ एनिमल, और वो किससे लगा हुआ है? बर्फ़ गाड़ी के साथ। यानी वहाँ पे कंपैरिजन कुछ इस तरीके से की जा रही है। बच्चे जो हैं, जो कि बेयर कब्स की तरह नज़र आ रहे हैं, वो फ़नी लग रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, और बच्चे जो हैं यहाँ वहाँ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आगे कि
जो कवि है वो उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिस पर तुम भरोसा तो नहीं करोगे, लेकिन वो कहानी वो पोएट जो है वो सुनाते हैं और कहते हैं कि इसका जो मोरल है, जो इसकी बोलते हैं लेसन है, वो जब आप सुनोगे तो तुम्हें सुनने में बहुत मज़ा आएगा। वो कहानी सुनाना करते हैं शुरू, और वो भी कहाँ के लोकल लोगों के बारे में जो कि नॉर्थलैंड से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। कहानी सुनाते हैं कवि और क्या बताते हैं कि पीटर जो कि क्या बताए गए हैं, एक सेंट, तो कहते हैं कि एक बार एक संत जो हैं वो यहाँ पर रहने आते हैं, क्या करने के लिए, प्रीच करने के लिए, यानी उपदेश देने के लिए जब यहाँ पर आते हैं। तो सेंट पीटर की लाइफ कैसे दिखाई गई है, हमेशा सिंपल रहने वाले वो व्यक्ति रहा करते थे, दूसरों की हेल्प किया करते थे, भगवान के वो दूत माने जाते थे, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर आते हैं लोगों को प्रीचिंग देने के लिए, जैसा कि आप हमेशा सुनते हुए पाए जाते हो, सेंट पीटर हमेशा लोगों में इस दुनिया में क्या करने जाते थे, उपदेशों को देने जाते थे। जैसा कि मैं फ़िलहाल आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, तो सेम तरीके से सेंट पीटर भी यहाँ पर आए थे, क्या करने, प्रीचिंग्स देने के लिए पूरे वर्ल्ड में जब वो निकले थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तभी वो पहुंच जाते हैं एक कॉटेज के बाहर, कॉटेज मीन्स कुटिया, कुटिया के बाहर वो पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर क्यों पहुँचे हुए होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल करके आए हुए होते हैं, यानी घूम करके आए होते हैं और वो थक गए होते हैं। तो वो एक कुटिया के बाहर जाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी औरत के बारे में बताया गया है। एक औरत जो है वो क्या बना रही थी, केक बना रही थी फ्रॉम द हर्थ। हर्थ मीन्स फायर प्लेस, जिसे हम भट्टी कहते हैं, उसके अंदर वो केक को बेक करने का काम कर रही थी। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। अब पूरा दिन उनका बिना खाना पीना खाए गुजरा हुआ था, तो वो थक चुके थे, दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने उस औरत से कह दिया कि तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं, बेकिंग हाउस में तो केक बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप क्या मुझे उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, एक सिंगल पीस जो केक का है, दे सकते हो। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो उसने क्या किया, औरत ने उनके लिए केक को बेक करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो केक को बेक कर रही थी तो उसको लगा कि ये केक तो काफ़ी बड़ा लग रहा है और इतना बड़ा केक तो मैं दे नहीं सकती। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। फिर उसने दोबारा से आटे को गूंदा, नेड करना मतलब आटे को रेडी किया, और फिर उसको बेक करने के लिए ट्रे पे डाल दिया। एक साइड तो बेक हो गया, जब उसने टर्न करके दूसरी तरफ बेक करने की प्रोसेस में डाला तो उसको लगा कि नहीं, ये केक तो फिर से पहले जितना ही बड़ा हो गया है और ये इतना बड़ा देना सही नहीं है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। फिर उसने छोटा सा एक हिस्सा लिया डो का, यानी आटे का, उसको बेलना शुरू किया, इस हद तक बेलना शुरू किया कि उसकी जो लेयरिंग थी फ्लैट हो गई, किसके जैसी, वेफर जैसी, यानी चिप्स का लेयर कितना पतला होता है, कुछ इस तरीके से उसकी लेयरिंग उसने कर दी, पर उसको भी देने की इसकी इच्छा नहीं हुई। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। उसने खुद से कहा कि मेरे केक देखने में बड़े छोटे लग रहे हैं, पर ये मैं खुद खा लूँगी, ये इतने भी बड़े नहीं हैं कि मैं ये किसी को दे दूँ। तो उसने वो जो छोटा सा थिन लेयर वाला केक रेडी किया था वो भी उठा करके शेल्फ पर रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। अब सेंट पीटर काफ़ी देर से डोर पे वेट कर रहे थे कि ये लेडी उनके लिए केक बेक करके लाएगी, उनको देगी तो ये खा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से भूखे थे और प्यासे भी थे। अब वो जो था, उनका जो गुस्सा है वो भड़क जाता है और वो औरत को कहते हैं कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, इसने मुझे उकसाया है, एक संत को उकसाया है, प्रोवोक करना मीन्स उकसाना। And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। तब वो सेंट पीटर उनको कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारी जैसी मतलबी औरत अभी तक देखी नहीं है।
तुम तो ह्यूमन लाइफ में ड्वेल करने यानी इंसानों की ज़िंदगी के लायक हो ही नहीं, तुम्हें इस रूप में जीना ही नहीं चाहिए। ना तुम्हें खाना मिलना चाहिए, ना तुम्हें रहने की जगह मिलना चाहिए, ना तुम्हें अग्नि मिलना चाहिए ताकि तुम खुद को क्या रख सको, गर्म करके रख सको। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो उन्होंने उनको श्राप देते हुए कहा, क्या कहा, अब तुम भी चिड़ियों की तरह क्या करोगी, स्ट्रगल करोगी। आप लोगों ने बर्ड्स को देखा होगा कि वो अपने नेस्ट को कैसे मेहनत करके बनाती हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि तुम्हें भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें खाना कैसा मिलेगा, स्कैंटी यानी बहुत कम फूड मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा, जब तुम बोरिंग करोगी यानी लकड़ी पर खोदोगी, टिक 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 करती रहोगी, फिर तुम्हें जा कर के पूरे दिन की मेहनत के बाद खाने लायक छोटा मोटा खाना मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब वो जो औरत है वो चिमनी की तरफ चली जाती है एक शब्द को बिना बोले हुए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वुडपेकर यानी लकड़ खोद, आपने सुना होगा एक बर्ड है जिसका नाम है वुडपेकर, जिसकी चोंच जो होती है, बीक जो होती है काफ़ी लंबी होती है। एक वुडपेकर उड़ करके वहाँ से चली जाती है और वो कोई और नहीं होती, वही वुमन होती है जो यहाँ पे बताई गई है, जिसका काम क्या था, केक को बेक करने वाला। उसको क्योंकि सेंट पीटर ने श्राप दे दिया, जिस वजह से वो ह्यूमन से एक वुडपेकर बन जाती है। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम इज़ जस्ट एज सिंपल, नेवर टू बी अ सेल्फिश। कभी भी हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ना ही ग्रीडी होना चाहिए।